All right, so hi Barbie, welcome to Bollywood Live for the very first time. Hi Imran. Thank you so much for having me here. It's a pleasure. It's a pleasure. So we are here to talk about your new song, right? That's Teri Gali. I've seen on YouTube. In 1 week, it has crossed 25 million already. Yeah. That's the response of the song. So how happy are you with the response and how people are reacting to it? Can you tell me that first? Well, you know that I'm a newcomer and I have just entered in the industry. और एक के बाद एक पहले I dropped आजकल वे the female version सिद्धू मूसेवाला. I hope you know him. Yes, And yes. yeah, and after that this one, and I think back to back it's kind of overwhelming, and it's very beautiful. It's a very beautiful feeling. और अभी तो लॉकडाउन है, अभी तो चलो कोरोना टाइम है, बाहर नहीं जा सकते, but I'm getting so much love from everywhere on the social media, from my family. I'm on cloud nine. Yeah, it's a beautiful. You Yeah. should be on cloud 9 because the response is really good. People are commenting also very good. And the special thing about that is, well, Guru Randhawa has penned down the lyrics for it. He has composed it. So how was it when such a great singer or a very good singer, you can say, comes and collaborate with you? How does that make you feel? And what was the experience like with him? Actually, it was all Guru Sir's idea. We went to his place, I think last year, after my, song, after dropping my song Akhiyan. We were in Bombay and we were coming back from there. और वहाँ हमें एयरपोर्ट पे I came to know that Guru Sir is coming, Yeah. to pick us up, the whole team. Mm-hmm. बिकॉज गुरु सर का ये था कि गुरु सर जो मेरी टीम है द गोल्ड मीडिया टीम, तो उनके साथ बहुत ही शुरू से अपने स्टार्टिंग डेज से कनेक्टेड है. बिफोर बिफोर व्हेन ही वाज स्ट्रगलिंग. तो Okay. है तो एक ब्रदर्स वाला रिलेशन होता है. तो एंड ही वाज लाइक ही टेक्स्टेड माय प्रोड्यूसर एंड ही वाज लाइक कि लेट्स मीट. और हम सारी टीम थे तो वहाँ तो दे नेवर टोल्ड मी कि गुरु सर आ रहे हैं, बिकॉज दे न्यू दैट आई एम हिज फैन. Okay. I adore him so much, but they didn't tell me anything. Or it was a surprise for me, and I was in my pajamas. I was feeling so embarrassed जब वो हमें लेने आए. हम उनके घर पे गए. या वो हमें लेने आए तो उनके जब हम घर पे गए तो we spent a lot of time. I think near about 6 to 7 hours. तो बहुत सारी उन्होंने आई थिंक उन्होंने पूरी म्यूजिकल जर्नी शेयर की. उनकी क्या ड्रीम्स हैं, क्या गोल्स हैं, every each and everything. We had a very good time, and in the end he was like, I'll write something for you after listening to my. Wow. Yeah. So he was like, because I think this was the first time he has written something for a female also, and for some artist also, because Guru sir is kind of an artist जो अपने लिए ही लिखते हैं और अपने लिए ही गाते हैं. उन्होंने कभी Correct. किसी और के लिए नहीं लिखा. Correct. तो and he was like कि after listening to your voice I really want to write something for you. तो और कह रहे कि मैंने कभी लड़की के लिए नहीं लिखा है, कभी लड़की की तरफ से नहीं लिखा है, बट आई ट्राई. एंड ही ट्राइड सो गुड. और मेरे सच में बताऊं, जब उन्होंने बोला था ये तो एक ड्रीम की तरह लगा था. और मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया उसको कि वो लिखेंगे नहीं लिखेंगे. तो मेरे को ये था कि इतना बड़े सुपरस्टार है, बोल दिया यही बहुत है. सही बात है. या यही बहुत है. बट एक होता है ना मैन ऑफ हिज वर्ड्स. एक हफ्ते बाद मेरे पास एक ऑडियो क्लिप आता है, आई थिंक 30-35 सेकेंड्स का. तो मेरी टीम मेरे को बताती है कि ये गुरु सर ने आपके लिए गाना लिखा है, यू हैव टू प्रिपेयर इट एंड वी आर गोइंग टू डब इट इन 2 days. Wow. दैट्स काइंड ऑफ जब कहते हैं ना एक बच्चे को एक छोटे बच्चे को लैम्बोर्गिनी दे दो, तेरे लिए चीज हुई. सही है, बहुत सही बात है. अच्छे से चलाना सीखना था, चलाना था, वही टेस्ट ड्राइव लेनी थी.
तो होपफुली इट वेंट रियली वेल एंड गुरु सर ने बहुत तारीफ की, उनको बहुत पसंद आया जब हमने ये गाना डब किया। तो या Wow, that's a very beautiful story. बहुत अच्छी स्टोरी है। कि मुझे एक बात बताइए, जब आप ऐसे आर्टिस्ट के साथ में कोलैबोरेट करते हो तो काफी चीजें आप सीखने की कोशिश करते हो, राइट? उनसे उनसे सीखने या कुछ कुछ चीजें जो आप एडमायर भी करते हो। तो मुझे बताइए क्या क्या कोशिश की आपने उनसे सीखने की, और क्या चीज है जो आपने बहुत ज्यादा एडमायर की हो गुरु के बारे में? आई थिंक हिज सिंप्लिसिटी, परफेक्ट। his simplicity, even as a person, he's very simple. He's not like that, you know, मोस्टली हम सेलेब्स को देखते हैं, ही इज जैसे वो रियल में है वैसे ही वो कैमरा के सामने है। कोई वो ऑड नहीं लगता कि कोई वो एक्टिंग कर रहे हैं कुछ है ना। एंड वेरी सिंपल लिरिक्स जो सबके समझ में आते हैं। आई थिंक पंजाबी जो लिरिक्स होते हैं दे आर वेरी डीप यूजुअली। तो नॉर्मल लोग उसकी मे बी थोड़े बहुत लिरिक्स के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, या उसकी कॉम्पोजिशन या उसकी टोन के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, बट नॉर्मली लिरिक्स नहीं समझ आते हैं। बट आई थिंक गुरु सर इज काइंड ऑफ अ लिरिसिस्ट और कंपोजर जिनकी कॉम्पोजिशंस इतनी प्यारी होती हैं और लिरिक्स सबको समझ आते हैं। सिंपल पर डीप भी होते हैं। तो ये उनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है और वो हर एक को बहुत मोटिवेट करते हैं। बराबर। Yeah. नहीं, सही बात है, क्योंकि मैंने भी उनसे बात की है, मैंने भी उनके काफी इंटरव्यूज किए। जब भी उनसे बात करो ही वो बहुत डाउन टू अर्थ है, हमेशा ऐसे बैठ के बात करेंगे। आपको लगेगा नहीं कि आपके सामने कोई एक बड़ा सिंगर या बड़ा स्टार बैठ के आपसे बात कर रहा है। सो काफी चीजें आसान हो जाती है उनके साथ में कोलैबोरेट करने से। दैट्स व्हाई मुझे एक्सपीरियंस जानना था आपसे। ओके, Yeah. सॉन्ग की बात आगे करें तो असीम आपके सॉन्ग में है, आपने उनके साथ में एक्ट किया है, रोमांस किया है। So, मुझे जानना है कि मुझे बताइए वो डिफिकल्ट था या वो इजी था आपको उनके साथ रोमांस करना, बिकॉज़ आप फर्स्ट टाइम आप एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो, कितना इजी होता है ये या आपको हार्ड? सच आपको सच्ची में बताऊं, मैंने आई थिंक मैं जितने भी इंटरव्यूज किए हैं मैं सच्ची में आई वाज लाइक जब मैं उनसे सेट पे मिली थी और मैं उनसे सीधा सेट पे मिली थी। मैं पहले उनको जानती नहीं थी, मेरी टीम की उनसे बात हुई थी और ही वाज जब मैं उनसे पहली बार मिली तो वी वर अबाउट टू गिव अ शॉट के पहले मेरे को मैं आई वाज टेलिंग डायरेक्टर सर यादव सर को बोल रही थी कि सर मेरे को मिलवा तो दो, मैं उनसे सीधा शॉट पे मिलूंगी एंड मेरा क्या रिएक्शन होगा, मतलब मैं नर्वस हो जाऊंगी, मतलब मेरे परफॉर्मेंस पे फर्क। एंड यादव सर कह रहे थे चलो आ जा तेरे को मैं मिलाता हूँ। और हम सर से मिले एंड सर का मेकअप हो रहा था और सर आए, स्पेशली आए और उन्होंने मतलब बहुत ही वेरी स्वीट एंड वेरी हम्बल, जैसा बिग बॉस में उनको पोर्ट्रे किया जाता था तो वैसे वो बिल्कुल नहीं थे। और ही वाज वेरी स्वीट एंड वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी हम्बल, और बहुत प्यार से बात करते थे, बहुत कामली बात करते थे। और स्पेशली ही इज वेरी एक्टिव ऑन सेट और हर चीज को मतलब वो प्रॉपरली देख रहे थे। ये नहीं है कोई स्टार वाली फीलिंग नहीं ले रहे थे वो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक स्टार फीलिंग होती है ना कि नहीं मेरे आसपास बाउंसर्स हो, ये है वो नहीं था, ऐसी हवा कुछ नहीं थी, नॉर्मल थे बिल्कुल चिल। और या तो वो सब चीजें से रोमांस करना आसान हो गया था ऑन कैमरा, या चीजें डिफिकल्ट हो गई थी? रोमांस रोमांस कह सकते हैं, इट वाज ऑल एक्ट, यू नो दैट। हाँ, एक्टिंग रोमांस एज इन। या इट वाज पहले थोड़ा लगा कि मैं आई वाज आल्सो शेकिंग। मैंने लहंगा पहना हुआ था और आई थिंक वो शॉर्ट्स लगे नहीं है ज्यादा उसमें, एंड आई वाज वेयरिंग अ ब्लू लहंगा और सर इज वेयरिंग एन इंडियन कुर्ता, तो उसमें सिंग थे। तो वो शॉर्ट्स इसलिए नहीं लगे बिकॉज उस शॉर्ट्स में प्रॉपर एक रोमांस दिखाया हुआ था, पर मैं उसमें कांप रही थी। ओके। आई वाज मैं कांप रही थी और वो चीज कैमरे पे दिख गई, या वो चीज कैमरे पे दिख गई, इसलिए मेरे ख्याल से डायरेक्टर ने वो शॉट काट दिए। पर या दिस इज हाउ नर्वस आई वाज उस टाइम पे, बहुत ज्यादा।
वाओ ओके मैं समझ सकता हूँ आपकी आपकी चीजें आप किस तरह गुजरी होगी ओके राइट फाइन ओके बात करें तो बारबी आप इंडस्ट्री में नया बंदा जब आता है विदाउट अ गॉडफादर कितना डिफिकल्ट होता है एक सिंगर या एक्टर या कुछ भी ले लो एक बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक आपको एंटर करना होता है तो कितना डिफिकल्ट होता है एक आदमी के लिए जो बिना गॉडफादर के एंटर कर रहा होता है एंड वो चीजें कैसे नॉर्मल होती है या आप कोशिश करते हो कि चीजें नॉर्मल रखे आप इमरान, आई विल डेफिनेटली टेल यू कि थैंक थैंक गॉड कि पंजाबी इंडस्ट्री में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। Okay. और या यू डोंट नीड टू हैव अ गॉडफादर, यू जस्ट हैव टू बी योरसेल्फ। और जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी तो मैंने कभी किसी को अप्रोच नहीं किया था, तो मतलब मेरे को खुद ऑफर्स आए थे and thankfully I made the right decision, to get attached with the right people, because हर इंडस्ट्री में हर तरह के लोग होते हैं और ये लक भी कह सकते हो, तो ये एक समझ भी कह सकते हो कि आप कैसे लोगों पे ट्रस्ट कर रहे हो, कैसे लोगों से जुड़ रहे हो। और मेरी स्टार्टिंग हुई थी प्रीत हुंदल से, है ना। हमारे जो इंडस्ट्री के ये पंजाबी इंडस्ट्री के बहुत फेमस राइटर और म्यूजिक डायरेक्टर हैं एंड ही हैज गिवन मेनी हिट्स। और उनसे मेरी स्टार्टिंग हुई थी एंड ही इज अ वेरी वेरी कैरेक्टर वाइज एवरीथिंग इज वेरी जेंटल पर्सन, फैमिली पर्सन बेसिकली। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को गोल्ड मीडिया से कनेक्ट करवाया, जो मेरी टीम है। And they are gems of Punjabi industry. They are very young, very creative, और ये गॉडफादर होना ना होना आई डोंट थिंक सो कि जरूरी भी होता है, बिकॉज बात ये होती है कि आप सही टीम के हाथ में हो और आप कैसे काम कर रहे हो, आपके विजन्स क्या हैं, और इट्स ऑल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसा कुछ आप सोचोगे वैसा कुछ ही आप अट्रैक्ट करोगे। सही बात है, बहुत बढ़िया बात की है, बहुत बढ़िया बात की है। ओके एक और टॉपिक आपसे डिस्कस करना था। काफी लोग होते हैं जो रिमिक्स गाने बन रहे, हमारे पुराने गाने के जो रिमिक्स बना रहे, काफी लोग उनके फेवर में बात कर रहे हो, काफी लोग है उनके अगेंस्ट है। वो कह रहे हैं कि आप पुराने गाने लेके रिमिक्स कर रहे हो, आप उसको बिगाड़ रहे हो। काफी लोग बोलते नहीं वो अच्छा करे। तो आप कहाँ पे स्टैंड करती हो? आप पसंद करती हो पुराने गानों को रिमिक्स करना या ना करना पसंद करती हो? नो रीमिक्स, अगर रीमिक्स हो भी रहा है तो उस गाने को निखारा जाए, ना कि उसको बिगाड़ा जाए। बट 90% टाइम ऐसा होता है कि वो गाना बिगड़ ही जाता है। करेक्ट? आप मानती हो ये बात? Yeah, I have seen a big example of, I think, Long Lachi. The original one was much better. हाँ, जो पुराने गाने हैं उनके कई रिमिक्स मेरे को अच्छे भी लगते हैं। लाइक आई थिंक वो रिमिक्स बहुत आँख मारे वाज वेरी नाइस। बट मैं अभी भी पुराने गाने के फेवर में, बिकॉज़ पुराना गाने का तरीका अलग था, वो जमाना अलग था, उसका टाइमिंग अलग था। वो टाइम पे वो गाना बहुत अच्छा लगता है। बट आप रिमिक्स करते हो गाने को, मुझे अच्छा नहीं लगा, पर्सनली मैं कह रहा हूँ। पर्सनली मुझे भी नहीं अच्छा लगता, पर ये है कि उस गाने की ब्यूटी को भी वैसा ही निभाया जाए। अगर आप एक गाना है, वो प्योर क्लासिकल गाना है, उसको हिप हॉप बना दोगे तो फिर तो उसका जुलूस ही निकलेगा। सही बात कही। तो उसको वैसे ही रखो, उसमें उसको उभार दो, उसको अपडेट कर दो, उसके म्यूजिक को, लिरिक्स को मत छेड़ो, और वैसे ही आवाज लो, है ना। कोशिश करो कि ओरिजिनल सिंगर ही उसे गाए। अगर नहीं भी गा पा रहे तो उनसे गवाओ जो वैसा गा सके, उसको निभा सके। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स। जैसे सर ने जो भी रीमिक्स गाए हैं, नेहा कक्कड़ मैम ने जो भी गाए हैं, मोस्टली दे आर वेरी गुड। उन्होंने निभाए हैं वो चीज। बढ़िया, ठीक है, जस्टिफाइंग है, अग्री करता हूँ मैं आपकी बातों पर। अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है जो लॉकडाउन रिलेटेड है। सिंस हम सब अंदर बंद है घर के, तो मेरे पास कुछ फन रिलेटेड क्वेश्चंस है। ओके मैं आपसे पूछता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है, मुझे बताइए, अगर आपको चॉइस दी जाए कि आप एक सेलेब के साथ में लॉकडाउन हो सको, ओके, तो आप किसको चुनोगे एज योर लॉकडाउन पार्टनर? एक्सेप्ट गुरु सर, you can't choose him now. Lockdown partner as a romantic partner? No. In general. Okay.
Anyone? हाँ, कोई भी celeb होना चाहिए बस. Singer, actor, कोई भी हो सकता है. Shawn Mendes. Oh, okay. Brandon. Yeah, I love them so much. I really want to be around them somewhere and somehow. चाहे वो lockdown हो, चाहे वो कुछ भी हो. I love them. Yeah. Okay. Good choice. बढ़िया choice है. Okay, मुझे बताइए कोई hidden talent आपने discover किया घर पे बैठे-बैठे हाँ मैं गाना गाने के अलावा ये भी कर सकती हूँ. Hidden talent मैंने ये डिस्कवर किया है कि मैं सफाई बहुत अच्छी करती हूँ. Okay. Yeah, that I was kidding. और मेरे ख्याल से I am a very homey girl. मैं ज़्यादा बाहर जाती नहीं, तो मेरे को लॉकडाउन का इतना पता नहीं चला. मेरा काम होता था सिर्फ स्टूडियो में रहना, स्टूडियो से घर, घर से स्टूडियो, और बस मेरा कोई ज़्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं है. आई हैव आई थिंक वेरी फ्यू फ्रेंड्स, 2 or 3 जिनके साथ मैं टाइम बिताती हूँ, और घर पे ही रहती हूँ. आई एम नॉट एन आउटगोइंग पर्सन. मेरे को पार्टीज करना पसंद नहीं है, मेरे को मॉल्स में जाके मटर गश्तियाँ करना जाके पसंद नहीं है, मेरे को रेस्टोरेंट्स पे जाके खाना खाना पसंद नहीं है, मेरे को घर का पसंद है. Yeah, I'm a very, old school type of girl. Wow, मैं काफी लोगों को जानता हूँ जो ऐसे old school type of girls की खोज में दुनिया फिर रहे हैं, आपको पता है? Okay, but that's very simple, एक आर्टिस्ट को इतना सिंपल होना, it's like बहुत कम लोग में आप देखते हो कि एक आर्टिस्ट इतना सिंपल होने की कोशिश करता है. काफी आर्टिस्ट लार्जर देन लाइफ जीने की कोशिश करते हैं, बट अच्छा लगता है जब कोई ऐसा सिंपलिसिटी के साथ में आता है. तो थैंक यू सो मच फॉर दैट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है. सिंस हम घर में बैठने की बात कर रहे हैं, तो मुझे बताइए घर में सबसे ऐसा कौन सा काम है जिसे आप हेट करती हो और आप उसे और ऐसा कौन सा काम है जिसे आप पसंद करती हो? झाड़ू, पोछा, बर्तन इंक्लूडेड. ओके, पोछा आप लाइक करती हो करना? ओके, और ऑलवेज मेरे को अच्छा लगता है पोछा लगाना. मैं मम्मा को बोलती होती हूँ मेरे को झाड़ू लगाना पसंद नहीं है. मम्मा आप झाड़ू लगाना, मैं पोछा लगाऊंगी. ओके, गुड वन. ओके, मुझे बताइए आप ऐसी कौन सी वेब सीरीज देख रही हो या मूवीज देख रही हो जो अपने फैंस को रिकमेंड करना चाहती हो कि प्लीज गो अहेड एंड वॉच दैट आल्सो? Go and watch Money Heist. Oh, it's amazing. And go watch Stranger Things and Outlaw and Dark and Friends. मैंने लॉकडाउन में सब कुछ खोल दिया. Yeah, I love that. And one more, there is one more South Korean series. If any fans are into romantic kind of things, they should watch Descendants of the Sun. It's very nice. Good choices. Okay, last 2 questions. मुझे बताइए ऐसा कौन सा सेलेब है जिसने आपको इम्प्रेस कर दिया सोशल मीडिया पे अपने पोस्ट डाल कर लॉकडाउन के दौरान? एमी विर्क. Okay. Yeah. Emmy Virk, maybe you know him. Yes. And he has done, it was like एक लहर चल जाती है ना, and there was Emmy Virk all everywhere. कोई गाँव, और उन्होंने इतने कवर सॉन्ग्स किए होंगे ना, इतने ज्यादा. He was so good and he was like, कहते हैं ना कोई बंदा किसी चीज का पूरा भरपूर इस्तेमाल करता है, उन्होंने लॉकडाउन का भरपूर इस्तेमाल कर दिया. So it was like that. Okay, good choice. Okay, हम इंटरव्यू इस तरह एंड करेंगे. मैं आपके गाने के बोल सुनना चाहता हूँ कि आप गाते गाते इस इंटरव्यू को एंड करें. मैं आपको thank you so much for chatting with me. First of all, you're very simple. मुझे बहुत पसंद है आपके साथ में चैट करना. I'm looking forward to we do this in person again ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद. बट जाते जाते आपके गाने सुनना चाहता हूँ, and that's how we end the interview. Can you do that? खुदा दे खुदाई वे मार मुकाई वे तेरी है जुदाई अल्लड़ मुटिया किन्ना तेनू चाहंदी वे ती हसदी हसांदी वे तेरे पिछे रोंदी हुण पै गई किहड़े राह नूं रातां कालियां दे विच हाय तेरी मैनू खिच ले तेरी गलियां गई सजना मैं बूहे टप के बारियां भी मैं तेरी गलियां गई सजना.
Wow, that was a beautiful song. Thank you so much for that. So, Barbie, best of luck for your upcoming projects. We'll see you soon. I'm looking forward to hearing more of your songs. Thank you so much for chatting with me. And thank you. It was lovely talking to you. Thank you so much. Bye.